Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, Hope you all are doing well. We have sixth session today of our course, and in the last class we discussed some theories, and the remaining theories we'll discuss later. Uh, Today we're going to start a new topic that is motivation uh, techniques, and in which we going to discuss all the things regarding the motivation, how we motivate our employees, and how we create a working environment. It's like the motivation from concepts to application. Uh, हमारा आज का जो पूरा टॉपिक है, पूरा लेक्चर है, वो तमाम इसी के ऊपर ही बेस करेगा। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। अच्छा, इसमें जो हम पहली जो चीज देखते हैं, इसके बाद जो है हम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जो भी इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस द मोटिवेशन बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। वेल, the thing is that research on motivation is focused on approaches that link motivation, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट टू चेंज इन द वे वर्क इज स्ट्रक्चर्ड, कि मैं किस तरह से एक काम को करना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर उसका बना रहा हूँ। और द मेन थिंग इज कि हाउ कैन आई मोटिवेट द persons who going to do something or going to start that work in a efficient way. Research also says that job design provide stronger evidence that the way the elements in a job are organized can act to increase or decrease efforts. कितनी efforts लगाई जा रही हैं. Another thing is what is job design? Basically, the job design is like the way the elements in the jobs are organized. In simple words, we can say that what sort of work we gonna do, कि जितने भी उस काम को करने के जो तरीकेकार हैं, हमको किस तरह से उस काम को सरअंजाम देना है, उसके अंदर क्या क्या हमने जो प्लान किया है, क्या क्या उसके अंदर हमने टारगेट सेट किए हैं, हम किस तरह से उस काम को एक पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बेसिकली दैट्स द जॉब डिजाइन। नाउ we have the job characteristics model, जिसको हम जो है JCM भी कहते हैं, job characteristics model. Basically, what is job characteristic model? It's like the model that propose that any job can be described in terms of 5 core job dimensions. ठीक है, हमारे पास जो एक मॉडल है, we have the 5 things: skill, variety, task identity, task significance, autonomy, and the feedback. Now, अब हम ये बात करते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या, कि जो ये जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल है, बेसिकली द थिंग इज कि एक मोटिवेशन से इसको हम लिंक्ड करवा रहे हैं। तो हम इसके अंदर ये चीज देख रहे हैं कि बेसिकली किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से उनको काम करने पे आमादा कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं किस तरह से मतलब उनको काम करने पे आमादा कर रहा हूँ। देखिए, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकॉम्प्लिश द वर्क विच इज असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट द थिंग इज कि मैं किस तरह से उनको उस काम करने पे आमादा कर रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग इज द जॉब स्किल वेराइटी. Basically, skill variety is that the degree to which the job requires a variety of different activities. ठीक है, मतलब हम इस चीज में ये देख रहे होते हैं कि या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि the degree to which the job requires a variety of different activities, so the workers can use a number of different skills and talents. That's basically depends कि what sort of skills they have, what sort of talent they have. You know that every person have different skills, different talent. For example, we can say that a cricketer, if we talk about any cricketer, that cricketer have a very good is a very good bowler or a very good batsman.
मे बी ही इज अ ऑलराउंडर, बट द थिंग इज कि वो या तो एक बॉलर हो सकता है या बैट्समैन हो सकता है, मतलब उसकी ये एक उसका टैलेंट है, ये उसके स्किल्स हैं कि उसके किस कौन से स्किल्स उसके ज्यादा बेहतर हैं, एंड दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज मैनेजर और हिज कोच टू पॉलिश हिम। ठीक है, हम इसके अंदर अगर बात करते हैं कि job scoring on high on skill variety would be the owner operator of garage who does electrical repairs, rebuild engines, does body work and interact with customers. ठीक है, ये मतलब डिफरेंट स्किल्स हैं कि लाइक अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर हम किसी गैराज की अगर बात करते हैं, वहां पे जो भी साहब मौजूद हैं, जिनको हम मैकेनिक एक आम अल्फाज में कह सकते हैं, टेक्नीशियन हम उनको कह लें, तो वो मतलब उसकी एक इंजन्स भी बना रहे हैं, उसके टेक्निकल इश्यूज को भी दूर कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी फेस कर रहे हैं, उनको डील कर रहे हैं। तो बेसिकली उनके पास ये स्किल्स हैं कि वो किस तरह से कस्टमर को डील कर रहे हैं, और ये उनके पास टैलेंट है कि वो क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो वी कैन से दैट के स्किल्स वैरायटी के हर इंसान के पास डिफरेंट किस्म के स्किल्स होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन स्किल्स की बेस पे उसको ड्यूटीज या उसकी जॉब्स जो असाइन की जा रही होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टास्क आइडेंटिटी. Task identity is like the degree to which the job requires completion of a whole and identifiable piece of work. ठीक है, कि एक हम ये कह सकते हैं कि एक हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने पहले में स्किल्स के हवाले से बात की है ना, तो सेकेंडली हम ये बात कर रहे हैं कि वो टास्क आइडेंटिफाई, कि एक हम किसी ऐसे शख्स की बात कर सकते हैं लाइक के वो कारपेंटर है एंड ही लव्स टू मेक द कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट्स। ठीक है, अब वो वुडन कैबिनेट्स जो वो बना रहा है, तो नाउ इट्स हिज ड्यूटी टू सेलेक्ट द वुड, देन मेक दैट वुड इनटू द ब्यूटीफुल कैबिनेट्स। ठीक है, तो एक ये हम चीज एक कह सकते हैं कि वो किस तरह से एक पीस ऑफ फर्नीचर जो है वो बिल्ड कर रहा है परफेक्शन के साथ। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो किस तरह से परफेक्शन के साथ जो है वो उसको फुल कंप्लीट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने बात करी कि जॉब रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ अ होल एंड आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क, मीन टू से दैट कि व्हेन ही और शी starts their work, it's necessary to end that work with successfully, कि कंप्लीशन उसकी करे सक्सेसफुली, और कोई बीच में हैजर्ड अगर कोई अगर आ भी रहा है तो उसको किस तरह से वो रिजॉल्व करे, कोई इशू अगर आ रहा है तो उसको किस तरह से वो रिजॉल्व करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये उसका काम का हिस्सा है, तो जो भी टास्क है उस टास्क को सक्सेसफुली अचीव कर सके, ये एक टास्क आइडेंटिफाई के अंदर हम बात कर रहे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द टास्क सिग्निफिकेंस. Task significance is like the degree to which the job has a substantial impact on the life of work of other people. कि मैं किस तरह से दूसरों की जिंदगी पे या दूसरों पे असर अंदाज हो रहा हूं, मैं उनके लिए एक जिसे कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, और मैं किस तरह से दूसरों के काम आ रहा हूं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्स ऑफ एनी हॉस्पिटल who take care of the patients, look after the patients, और वो किस तरह से जो है उनकी डाइवर्स नीड्स को जो है फुलफिल कर रही होती है या कर रहा होता है, और किस तरह से वो हैंडल कर रहे होते हैं एक पेशेंस के साथ, एक हॉस्पिटैलिटी इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसके अंदर अगर हम मजीद बात करें तो हम स्वीपर्स की बात करें कि किस तरह से वो एक पेशेंटली जो है दे क्लीनिंग द फ्लोर, स्वेपिंग द फ्लोर, और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार फ्लोर जो है वो खराब हो रहा है, बट ही और शी वर्क वेरी पेशेंटली, वर्क विद स्माइल। बेसिकली ये एक बात आती है कि किस तरह से वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो
किस तरह से दूसरों के लिए मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किस तरह से काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने इन तीन एक में देखा जिसमें कुछ कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी बेसिकली क्या होता है कि द डिग्री टू विच the job provides substantial freedom and discretion to the individual in scheduling the work and in determining the procedure to be used in carried it out. Basically ऑटोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, हम इसमें एक जो सबसे पहले बात कर रहे होते हैं, हम फ्रीडम के हवाले से बात कर रहे होते हैं। इसलिए हम फ्रीडम के हवाले से बात कर रहे हैं, लाइक कि आई वांट दैट ऑन माय जॉब कि मुझे फ्री छोड़ दिया जाए, मुझे फ्री हैंड दे दिया जाए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माय वर्क, आई विल टेक द डिसीजंस। ठीक है, और कि किस तरह से मुझे उसका एक प्रोसीजर्स मुझे सेट करने हैं कि किस तरह से मुझे काम करना है। तो बेसिकली मैं किस तरह से उन तमाम कामों को सर अंजाम दूंगा। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स पर्सन हु schedules his or her own work each day and decide on the most effective sales approach for each customer without supervision. I don't want any supervision. I don't want any supervision. I want to work my own. ठीक है, मुझे किसी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो है खुद से जो है काम करना चाहता हूँ। और ये एक मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि मुझे एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई है, आई नो दैट के मैं एफिशिएंटली जो है इस तमाम काम को सरंजाम दे सकता हूँ। आई कैन टेक डिसीजन माय ओन, आई कैन सेट द प्रोसीजर्स ऑफ वर्क दैट विल बी यूज्ड or that will be necessary for that specific job. So एक हम ये कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज feedback. Feedback is like the degree to which carrying out the work activities required by the job result in the individual obtaining direct and clear information about the effectiveness of his or her performance. Basically आसान अल्फाज में अगर हम इसकी बात करते हैं, फीडबैक समझ में आता है फीडबैक कि if I complete my work in time means efficiently, effectively. अगर मैं effectively और efficiently को अगर आपको सामने एक दफा दोबारा से अगर बताऊं, जो हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कि efficiently is efficiency. Efficiency is what work done in time. So efficiency is what minimum input and maximum output. ठीक है, that is efficiency. कि मैं कितना एक कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा हूं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इज लाइक द वर्क डन इन टाइम। फॉर एग्जांपल, माय बॉस असाइन मी some duty and he asked me to submit that work 6 in the evening. If I submitted that work at 6 in the evening, that is effectiveness. That is effectiveness because I submitted my work in time. Or and in the second case, if I submitted my work at 4 or 5 in the evening, that is efficiency because I submit that work before time. Minimum input, maximum output. I'm sure you're getting my point. Now, the fifth point is feedback. The fifth point is feedback. हम feedback की अगर बात करते हैं तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो भी मैंने काम किया, जो भी मेरी परफॉर्मेंस रही, how my boss or my team leader appreciate me or not appreciate, he give me feedback कि either I work good or bad, और कहाँ पे कोई कमजोरी थी या किस जगह पे मैं लैक कर रहा था या कर रही थी, तो उस जगह पे जो है मुझे एक गाइडलाइन दी जाए, सो आई नेवर रिपीट दैट मिस्टेक इन द फ्यूचर। हम अगर फीडबैक की एग्जांपल के हवाले से अगर बात करते हैं तो वी कैन से दैट कि एक
लाइक के एक मोबाइल फोन रिपेयरर की अगर बात की जाए, या अगर ये बात की जाए कि अ टेक्नीशियन हु असेंबल्ड द आईपॉड्स एंड द आईपैड्स, ठीक है। अब द थिंग इज कि जब उसको कस्टमर यूज कर रहा है, तो अब वो किस तरह से उसका एक वो यूज हो रहा है, या उसकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, तो उस पर फीडबैक देना। हम देते हैं ना फीडबैक, लाइक कोई टीचर अगर पेपर ने एक थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको पढ़ाया, एट द एंड उसने जब पेपर आपसे लिया, तो अब वो आपको फीडबैक देगा कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड इन द लेक्चर्स ड्यूरिंग क्लास, ठीक है ना। एक जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम ही हमको बता रहा होता है ना कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया, उसने क्या सीखा। ये एक बहुत मतलब जो है एक मैटर कर रहा होता है, ठीक। तो ये हमारे पास जो है एक इसके 5 पॉइंट्स हैं, एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल के, जेसीएम के, जिसमें स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। नो, अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन जॉब्स बी रीडिजाइन, कि हम किस तरह से इसको एक चेंज लेकर आ सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी जॉब डिजाइनिंग के हवाले से, कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब हम रीडिजाइनिंग की बात करें कि मैं उसको किस तरह से एक मजीद जो है एक उसको एडवांस फॉर्म में लेकर आ रहा हूं। सो हियर वी हैव द थ्री थिंग्स। जॉब रीडिजाइनिंग के लिए हमारे पास 3 किस्म की चीजें होती हैं, एंड दीज थ्री थिंग्स प्योरली रिलेट्स विद द एचआर साइड, ह्यूमन रिसोर्स, but we have to know these things because these are the basics, ठीक है। ओबी के अंदर मतलब हमको इस चीजों का पता होना चाहिए। we have three things, कौन सी हैं वो? the job rotation, job enrichment and job enlargement. First we discuss the job rotation. Job rotation is what? The periodic shifting of an employee from one task to another, like the employee shifted from one department to another, or in the same department he worked on the different positions. इसकी अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि जब हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स की होंगी, तो मैनेजमेंट वांट दैट इंडिविजुअल टू वर्क ऑन अ different places, like in different departments, on different positions. तो इससे होता है क्या है कि इससे मेरी एक लर्निंग हो रही होती है, मेरी मुझ में एफिशिएंसी आ रही होती है। मैं मुझे रोटेट किया जा रहा होता है। लाइक मैं अभी अगर इफ आई एम बिलोंग्स टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, say marketing and sales department, so sometime I'm work in the office area, or mostly I'm working in the field. अब फील्ड से अब मुझे कभी किसी एरिया में भेजा जा रहा है, कभी किसी एरिया में भेजा जा रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूं, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मुझे कभी किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करवाया जा रहा है, कभी किसी एक पोजीशन पे काम करवाया जा रहा है, तो मुझे रोटेट किया जा रहा है। सो कि मुझे एक लर्निंग हो सके, कि मैं ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं कि जो जॉब मुझे मिले मैं उसमें एफिशिएंट हूं, मैं उसमें परफेक्शन मुझ में आती जाए, मैं लर्निंग कर सकूं, ठीक है। दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये मेरी ट्रेनिंग का भी पार्ट है। और जब एक टाइम गुजर जाता है, तो फिर मैं एक जगह पे सेट होकर काम कर रहा होता हूँ। बेसिकली ये एक इनिशियली कैरियर के अंदर हमारे हो रहा होता है, एक जॉब रोटेशन का जो एक जो फैक्टर है, ये वहां पे हमारे पास आ रहा होता है। नाउ जॉब इनरिचमेंट की जब हम बात करते हैं, जॉब इनरिचमेंट की जब हम बात करें, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है जॉब इनरिचमेंट के अंदर हमारे पास, कि एक वर्टिकली जो है एक्सपेंशन हो रही होती है, कि लाइक वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब इंक्रीजिंग द डिग्री टू विच द वर्कर कंट्रोल द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन ऑफ वर्क। कि मेरी एक जो मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूं, मैं जिस मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा हूं, या मैं जिस भी पोस्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे उसके सेम लेवल की एक और जो है एक जॉब असाइन कर दी जाती है, कि अब मैं अपनी पोस्ट को भी रन करूंगा और अपने साथ साथ दूसरी पोस्ट को भी रन करूंगा। लाइक मैं अगर मार्केटिंग मैनेजर हूं, तो कुछ टाइम के लिए मुझे एक फाइनेंस मैनेजर का भी एक
टास्क दे दिया गया कि जी आप इसको भी लुक आफ्टर कुछ अरसे तक करेंगे, ठीक है। एक मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि वर्टिकल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे होते हैं कि मतलब मैं एक सेम जैसे कह सकते हैं कि पोस्ट पे जैसे काम कर रहा हूं, तो मुझे अपने उस सेम लेवल की एक और जॉब जो है मुझे असाइन कर दिया, अब मैं दोनों को लुक आफ्टर करूंगा। On the other hand, when we talk about the job enlargement, it's the horizontal expansion कि मेरी जो एक मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ इससे एक स्टेप ऊपर की एक भी एक पोस्ट मुझे असाइन कर दी गई, लाइक के मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भी को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो दैट्स लाइक द जॉब इनलार्जमेंट। इनरिचमेंट भी अगर हम बात करते हैं तो सेम लेवल या एक लेवल नीचे, ठीक है। और इनलार्जमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो इनलार्जमेंट में हम देख रहे होते हैं कि एक पोस्ट ऊपर, एक ग्रेड ऊपर की जो जॉब होती है वो मुझे असाइन की जा रही होती है। तो बेसिकली ये हमारा जॉब इनलार्जमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। Now we have the employee involvement. Next slide is employee involvement. कि अब एक हम देखते हैं कि एक मैनेजमेंट की जो है एक इन्वॉल्वमेंट जो है रहती है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉय की जो इन्वॉल्वमेंट होगी किस तरह से होगी, कि वो कितनी ज्यादा जो है एक काम में एक इंटरेस्ट शो कर रहा है, किस तरह से वो कर रहा है। तो हियर वी हैव द थ्री थिंग्स। अच्छा, आज की अगर हम बात करते हैं लेक्चर में हमारे पास छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम क्विकली इसलिए इसको एक साथ कर रहे हैं कि यहाँ पे इसलिए देखें कि मैंने इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, मैं जो बताता जा रहा हूँ आप उसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई चीज अंडरस्टैंड अगर नहीं हो पा रही तो मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई आल्सो शेयर द स्लाइड्स विद यू। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। जब हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली अच्छा, एक चीज में अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो ये हमारे पास रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज के अंदर आ रहा होता है कि मैं किस तरह से एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड कर रहा हूं। तो अब हम यहाँ पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं तो इट्स लाइक द प्रोसेस इन विच सबऑर्डिनेट शेयर अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद देयर इमीडिएट सुपरवाइजर्स। कि एक किसी हद तक मेरे पास डिसीजन मेकिंग मौजूद होती है जो मैं ले रहा होता हूं, और मेरे जो भी एक मेरा इमीडिएट सुपरवाइजर है, मेरा इमीडिएट बॉस है, मैं उसको सजेशंस दे रहा हूँ, और अगर उसमें कुछ ऐसे आइडियाज आ रहे हैं तो ही और शी डेफिनेटली अडॉप्ट देम। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो वी कैन से दैट द क्रिएट कल्चर ऑफ प्रेजिंग एंड एप्रिशिएट, कि मैं किस तरह से जो है लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं किस तरह से जो है जिसे कह सकते हैं कि लोगों को एक कंपनसेट कर रहा हूँ, उनको जो है प्रेस कर रहा हूँ कि भाई वाह आपने क्या काम किया। बेसिकली ये हमारे पास ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आ रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन हमारे पास क्या होती है कि वर्कर्स पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज। कि लाइक मैं बात करूं कि हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है इसमें से चंद लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया कि यू ऑलवेज you have to attend all the meetings of the organization or the meeting arranged by the higher authority। तो आप उसमें जाएंगे, उसमें आप अटेंड करेंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, एंड यू हैव आल्सो द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। एक स्मॉल ग्रुप मिलके एक डिसीजन ले रहा है, मींस टू से दैट कि कोई एक शख्स डिसीजन नहीं ले रहा, एक ग्रुप मिलके डिसीजन ले रहा है। जैसे हमने बात करी ना इसके अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में जो है एक जैसे कह सकते हैं कि एक पार्टिसिपेशन मौजूद होती है, और जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है वो उस पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं कि हम अगर बात करें वर्कर्स, लेबर्स की अगर हम बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियंस होती हैं या वर्कर्स की जो यूनियंस वगैरह बनी हुई होती हैं,
तो अब जाहिर सी बात है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 200-300 लेबर या वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक विद ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली. I'll talk with the labor union workers union, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एक हैं या दो हैं, जो भी उनके मतलब लीडर है, मैं उनसे डिस्कस करूंगा. जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश जाएगी, जो उनके मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, ताकि मेरे काम पे इफेक्ट ना हो. क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं ना कि किस तरह से जो है लेबर्स जो है वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं और कंपनी जो है उस पर सफर कर रही होती है, काम सफर कर रहा होता है. तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम जो है डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल्स की अगर हम बात करते हैं कि वर्क ग्रुप of employees who meet regularly to discuss their quality problems, investigate causes, recommend solutions and take corrective actions. कि क्वालिटी, वर्क क्वालिटी को जो है एक जैसे कह सकते हैं कि उसको एनालाइज किया जा रहा होता है, जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा होता है, जो कॉजेज होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे. वी डेवलप और वी अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. पहले अगर हम 1000 यूनिट्स अगर एयर में अगर सॉरी वीक में अगर हम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब इस मशीन के थ्रू हमने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. कुछ टाइम के बाद हम वापस जो है वो 3000 से 1500 और 2000 का आ गए. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे लैक कर रहे हैं. तो ये कॉजेज हमको फाइंड आउट करने, सोल्यूशंस हमको रेकमेंड करने होते हैं, सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं, मतलब डिसीजंस लेने होते हैं उसके बाद. ठीक है, एक डिसीजंस लेने हैं, लाइक कि मैं क्वालिटी सुपरवाइजर हूँ या मैं फ्लोर मैनेजर हूँ, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक द डिसीजन, और या उनकी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर रहा हूँ, या ये चीज देख रहा हूँ कि जी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं. ये तमाम चीजें हम इसके अंदर देख रहे होते हैं. तो बेसिकली दीज आर द एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, की एम्प्लॉय की किस तरह से अपने काम में इन्वॉल्वमेंट होती है और कितनी एफिशिएंसी के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ वो यहाँ पे काम कर रहा होता है. So we have the three things: the participative management, representative management, and the quality circles. अच्छा, इसी का जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, दैट इज रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज, हमारे पास आ रहा होता है. अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, या एक जैसे कह सकते हैं कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि लाइक कि अगर हम किसी एक स्कूल टीचर की अगर हम बात करते हैं कि he or she get the 10,000 or 15,000 सैलरी. तो अब एक चीज इसमें ये आती है कि जनाब वो ये सोचता है या सोचती है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं बच्चों के पेपर्स ले रहा हूँ, चेक करके रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी. 10-15 हजार में से जी इतना ही काम किया जाएगा. अब ये मेरा काम नहीं है कि मैं इंडिविजुअली हर बच्चे को तवज्जो दूं. बेसिकली इट्स अ जनरल थिंकिंग. बट अगर हम बात करते हैं कि टीचिंग इज एन नोबल प्रोफेशन, तो अब अगर हम इसको प्रोफेशन से ज्यादा अगर हम इबादत समझ के काम करें तो बहुत जबरदस्त बात है. बट अगर इसको एज अ प्रोफेशन लिया जा रहा है तो फिर ये चीजें जहन में आ रही होती हैं. तो अब किस तरह से मैं अपने एम्प्लॉय को इस बात पे आमादा कर सकूं, हाउ कैन आई मोटिवेट देम कि वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करें. एंड द वे वी मोटिवेट आवर एम्प्लॉयज who work day and night efficiently, effectively, with honestly, तो हमारे पास उसके कुछ वेज होते हैं. ठीक है, उसके हमारे पास कुछ वेज होते हैं जिनको हम अभी वन बाय वन जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. The first is पीस रेट पे प्लान. रेट पे प्लान की अगर हम बात करते हैं, so piece rate pay plan is like the pay plan in which workers are paid a fixed sum of each unit of production completed.
कि लाइक कि मेरा उनसे ये सेट हो गया कि जी आप जितनी भी एक फिक्स्ड हो गया कि आप जितनी प्रोडक्शन करेंगे उसके पर यूनिट के हिसाब से आपको मैं पे किया करूंगा। लाइक अगर आप दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं आपको $1 ईच यूनिट पे करूंगा, ये फिक्स्ड है। अब आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, आपको $1 फॉर अ सिंगल यूनिट में आपको पे करूंगा। ये एक फिक्स्ड रेट है कि ये फिक्स्ड हो गया कि जी मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दूंगा। अब आप 100 करें या 1000 करें, अब उसके हिसाब से आपको पे होता रहेगा, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक फिक्स सैलरी की हम बात कर रहे हो कि जी बस ये फिक्स्ड हो गया, अब आप जितना भी काम करेंगे अब आपको इतनी मंथ के एंड में सैलरी मिल जाया करेगी कि $1000 या $50,000 या $10,000 आपको ये मिल जाएंगे। तो इट विल आल्सो कम इन द रेट पे प्लान। अच्छा, उसके बाद जब हम सेकंड बात इसके बात करते हैं, दैट इज मेरिट बेस्ड पे प्लान। इट्स लाइक द पे प्लान बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगेन द प्योर एचआर ह्यूमन रिसोर्स थिंग कि जो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल को मैं थोड़ा सा रिकॉल अगर आपको करवा दूं कि इट्स लाइक कि जो ओवरऑल ईयर में थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंसेस हमारी होती हैं, एट द एंड ऑफ ईयर हमारी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स बनाए जा रहे होते हैं जिसकी बेस पे हमारे इंक्रीमेंट्स या हमारी प्रमोशंस या डिमोशंस या फायर करने के डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं कि जी ये अब नहीं चल सकता, इसको फायर कर दिया जाए एम्प्लॉय। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे पे प्लान सेट कर रहा हूँ, मेरिट बेस्ड पे प्लान, कि मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के बुनियाद पे लाइक द ए कैट। अगर मैं बात इसकी अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम इसकी एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल अगर ले सकते हैं, लाइक मैं क्रिकेटर्स की एग्जांपल लेता हूँ अगेन कि जो उनकी कैटेगरीज बनी होती हैं, ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई हुई है कि ए कैटेगरी वाले इतने लाख लेंगे, बी कैटेगरी वाले इतने लाख लेंगे और सी कैटेगरी वाले इतने लेंगे। तो बेसिकली उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है ना, और उसी की बेस पे उनको, तो दैट इज मेरिट बेस्ड पे प्लान। दैट्स द एग्जांपल ऑफ मेरिट बेस्ड पे प्लान कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है और उनको पे किया जा रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इज नॉट द परमानेंट। मे बी कि ये इस एक साल में ये रहे, नेक्स्ट ईयर मैं बी में था, मैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे ए पे आ गया और ए वाला अपनी लो परफॉर्मेंस की वजह से वो बी में या सी में चला गया, या मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया। तो ये एक जो है बड़ा एक मैटर कर रहा होता है, ठीक है। दैट इज मेरिट बेस्ड पे प्लान। नाउ द नेक्स्ट इज द बोनसेस, ठीक है। बोनसेस की हम बात करते हैं तो बोनस या पे प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर रीसेंट परफॉर्मेंस रादर देन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। बोनसेस की अगर बात करें, बेसिकली दैट इज द टिपिकल बुकिश डेफिनेशन। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो बोनसेस ये कि मैं जो रिवॉर्ड दे रहा हूँ कि जो करंटली आपकी जो परफॉर्मेंसेस थी तो आपको मैं दे रहा हूँ। लाइक ये इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि जी हमने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन किया और हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने प्रॉफिट जनरेट किया, तो जी हम अब अपने एम्प्लॉयज को भी बोनसेस देंगे, उनके साथ भी वो शेयर करेंगे। एंड अनदर थिंग इज कि मेरा जी कॉन्ट्रैक्ट है अपने एम्प्लॉयज के साथ कि मैं आपको साल में 1 या 2 बोनसेस दूंगा, मतलब मैं आपको रिवॉर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो भी मंथली सैलरी हो गई या मंथली या डेली वेज हो गई मेरी, एक होती है बोनसेस कि मैं किस तरह से आपको एक पे कर रहा हूँ कि जी साल में एक दफा कि आपने इतनी मेहनत करी या मैंने आपकी वजह से इतना कमाया, मैं आपको उसमें से कुछ उसका हिस्सा आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो दैट इज बोनस। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स की। अगर हम बात करते हैं तो इट्स लाइक the organization wide program that distribute compensation based on some established formula designed around a company profitability. Basically it's same like bonus and profit, but the main difference is sharing plan, profit sharing plans की अगर हम बात करते हैं तो it's like the कुछ shares वगैरह के हवाले से कि मैं कंपनी में हिस्सेदार बना रहा होता हूँ, जो प्रॉफिट मैं ले रहा होता हूँ मैं वो उसका कुछ परसेंट अपने एम्प्लॉयज को दे रहा होता हूँ। बोनसेस तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड है, मुझे देगा, बट प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ कि जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ये मुझे प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, मुझे एम्प्लॉयज की वजह से। So that's why I'm gonna share some percent of that profit to my employees. तो ये मेरा एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द गेन शेयरिंग। गेन शेयरिंग इज लाइक द फॉर्मूला बेस्ड ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स कि लाइक कि एक सेल्स टीम की अगर हम बात करते हैं कि सेल्स टीम के अंदर 10 लोग मौजूद हैं, उन्होंने
जो उनके टारगेट्स थे वो उन्होंने सब अचीव कर लिए। अब उसके अंदर 2 लोग ऐसे थे कि जो कुछ लो परफॉर्मेंस वाले थे, बट ओवरऑल टीम ने तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए। तो अब उस पूरे ग्रुप को जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो वो उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने काम कम किया या हल्का किया, बट सबके साथ प्रॉफिट शेयर होंगे। बट द थिंग इज, इसके अंदर एक चीज ये आती है कि अगर मैं इस मंथ में या इस क्वार्टर में मेरी परफॉर्मेंस लो थी, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर मेरी परफॉर्मेंस हाई हो। बेसिकली दीज आर द मोटिवेशनल टेक्निक्स। मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं कि मैं किस तरह से मोटिवेट कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज को, रिगार्ड कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज को, रिवॉर्ड कर रहा हूँ। सो व्हाई? ताकि वो मेरे साथ ऑनेस्टली के साथ, मेहनत के साथ काम कर सके, एफिशिएंटली, एफिशिएंसी के साथ वो मेरे साथ काम कर सके। द बिग रीजन बिहाइंड दैट, सिर्फ एक ये मेरा जो है एक रीजन जो है इसके पीछे होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं लर्निंग स्किल्स बेसिक बेस्ड पे प्लान्स टू मोटिवेशन थ्योरीज। हमने कुछ मोटिवेशन थ्योरीज एज यू नो कि हमने कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, कि जिसमें हमारे पास मैस्लो की थ्योरी थी और हमने देखी थी थ्योरीज। तो बेसिकली उनको अपने जहन में प्लीज रखिएगा। मैं जो भी कहता हूँ कि रिकॉल करते रहा करें। तो बेसिकली क्या है कि स्किल बेस्ड पे प्लान्स आर कंसिस्टेंट विद सेवरल मोटिवेशन थ्योरीज बिकॉज ऑफ देयर encourage employees to learn, expand their skills and grow. They are consistent और इस पे हम ये कह सकते हैं कि मजीद के among employees whose lower order needs are substantially satisfied, the opportunity to experience growth can be motivator. कि किस तरह से मैं अपने उनको मोटिवेट कर रहा हूँ एम्प्लॉइज को, और किस तरह से उनसे काम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली स्किल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगेन। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज कि स्किल्स बेस्ड पे, स्किल बेस्ड पे की अगर हम बात करते हैं ना, ये स्किल बेस्ड पे क्या है कि अ पे प्लान दैट सेट्स pay level on the basis of how many skills employees have or how many jobs they can do। कि मैं ये देखूं कि ये कितने मेरा एम्प्लॉय काम कर सकता है, ये मेरा एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, ये कितनी जॉब्स एक वक्त में परफॉर्म कर सकता है। मैं यहाँ पे इस चीज को भी अपने माइंड में रख रहा हूँ कि कितने काम कर रहा है, ये ऑलराउंडर है, मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको मतलब पे करने की करूंगा, और एक जैसे कह सकते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस मैं देखूंगा कि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कितनी है, वो कितनी सेटिस्फेक्शन है। और एक इसके अंदर मजीद जो हम बात करते हैं, हम ये करते हैं फेयरनेस इन पे सिस्टम। पे सिस्टम में जो है एक यहाँ पे जो है हमारे पास जो एक जिसे कहते हैं कि एक फेयरनेस होनी चाहिए कि जो जिस कैलिबर का है, जो जिस स्किल्स का है, वो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट की जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, डेवलपिंग अ बेनिफिट्स पैकेज। ठीक है, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स की बात करें कि बेनिफिट प्लान that allow each employee to put together a benefit package individually tailored to his or her own needs and situations। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो मैं अगर इसके अंदर अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल एक आपको बताता हूं कि टॉड इवन एंड एलिसन मर्फी बोथ वर्क फॉर सिटी ग्रुप, बट दे हैव वेरी डिफरेंट नीड्स इन टर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। टॉड जो है वो एक मैरिड है और उसकी एक तीन उसके बच्चे हैं, और उसकी वाइफ जो है एक फुल हाउस वाइफ है, फुल टाइम हाउस वाइफ है। जबकि एलिसन जो है वो भी मैरिड है, बट उसका हस्बैंड जो है वो एक हाई पेइंग जॉब कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। अच्छा, टॉड इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हैविंग अ गुड मेडिकल प्लान एंड इनफ लाइफ इंश्योरेंस टू सपोर्ट हिज फैमिली इफ ही वॉरेंट अराउंड। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि एक बेनिफिट उसको ये चाहिए कि वो मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस ले, ताकि अगर उसको आगे पीछे कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, या अगर वो दुनिया से गुजर जाए तो उसकी फैमिली सफर ना करे।
On the other hand, Allison husband already has her medical needs covered on his plan, कि उसके जो हस्बैंड है उसके वो अपने हस्बैंड के जो इंश्योरेंस प्लान या मेडिकल प्लान है उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, तो शी डोंट नीड एनीथिंग लाइक द टॉड. अच्छा. अच्छा, Allison is more interested in extra vacation time and long-term financial benefits such as tax deferred saving plans. ठीक है, क्योंकि वो एक फैमिली वाला शख्स है ना, तो मतलब ही वांट्स कि उसको ज्यादा से ज्यादा एक जैसे कह सकते हैं कि बेनिफिट्स मिल सके, टैक्स में छूट मिल जाए, उसकी इनकम में उसको किसी तरह से बढ़ जाए. अनदर थिंग इज उसको लॉन्ग वेकेशन मिले, सो ही स्पेंड गुड टाइम विद देयर फैमिली. ठीक है. द रीजन बिहाइंड दैट कि वो एक सिंगल अर्नर है अपने घर का, और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो और उसके 3 बच्चे भी हैं. जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें हम एलिसन की, तो उसका हस्बैंड भी एक हाई पे जॉब पे है और वो खुद भी अर्न कर रही है, तो और उनका कोई चिल्ड्रन भी नहीं है, सो उनको कोई इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मीन टू से दैट कि मैं क्या चाहता हूं, एक फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉयज का एक जैसा बेनिफिट ना हो, जिसकी जो पोजीशन है, जो पैकेज है, उसके अकॉर्डिंगली उसका पैकेज बनाया जाए. ये एक जिसे हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक द फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स. नॉर्मली ये हमारे यहाँ हमारी मार्केट में, हमारी सोसाइटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं हो रहा होता. बट अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो दे फॉलो these sort of benefits. Achha. After that, we have the intrinsic rewards, employee recognition plans, programs. Basically, intrinsic अगर हम rewards की अगर बात करते हैं, तो it's like the appreciation, the words which admire you, which appreciate you, which praise you, like wow, wonderful, क्या काम आपने किया है, मतलब मैंने उसके कॉलर खड़े कर दिए. ठीक है, मतलब एक वर्ड्स भी मतलब हमें बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं ना, मतलब कि मैं इतनी एफर्ट्स करूं, सब कुछ करूं, और एट द एंड मुझे 2 लफ्ज ये भी ना कहे जाए कि क्या ऐसे ऐसे काम किया, तो मतलब मुझे एक डिमोटिवेशन होगी कि यार इतनी मेहनत करने का फायदा क्या जब कोई प्रेज ही नहीं करता, कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता. आप देखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस में एक हर मंथ जो है एक एम्प्लॉय का एक फ्रेम लगाया जा रहा होता है एक वॉल के ऊपर के एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. तो मतलब ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, मतलब एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हम कह सकते हैं कि इसमें दिए जा रहे होते हैं. तो बेसिकली इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो है हमारे नॉर्मली ये हमारे पास होते हैं, और ये जो है उनकी एक परफॉर्मेंसेस को एक जैसे कह सकते हैं कि इम्प्रूव कर रहे होते हैं.